Good morning, dear students. Please wave your hand. Yeah, very nice. So all the students are settled. Without any delay, we will the concepts of motion chapter. Good morning, sir. Settle down as early as possible. Sir, your voice is. Please settle down as early as possible. But in ninth B, everybody will write down the heading motion. Please write down the heading as early as possible. I request the teacher of ninth B class to please help the student to settle down as quickly as possible. They are still roaming here and there. Pull out your assignment and the notebook. So, beta, we will discuss the assignment as well as the concepts. What will be our procedure? Here I will write the question number like the first question and what is the meaning of this statement that I will explain here. Then whatever is the concept required to solve that question, those basics and concepts will be clarified here. And here will be the solution of the concerned question. All of you are requested to participate if you think you can reply some question. And one more thing, every question has 4 options. Suppose you choose the first option as your answer, you should raise one figure. If you pick up the fourth option, you should raise 4 figures. That will be the procedure. Okay, sir. So let me explain, my dear students, the first question. A child walks 200 meters towards north from the home, then 300 meters back towards the south. What is the child position with respect to starting point? Let me explain, my students. First of all, you should be aware of the 4 directions. If it is north, opposite is south one, and always remember, on the right side of north is east, and here it is west. These are the 4 directions mutually perpendicular to each other. As per the statement of question, the person first goes to 200 meters. So this same O point I have shown here, that goes 200 meters towards north. This is your 200 meter clearly mentioned. And from there, it goes to 300 meters towards south. That means from here, teacher has drawn another line towards south. This yellow line represents 300 meters. Why I am drawing downwards? Look at this figure. Because from north to south, when the person has to go, naturally, I have to draw the yellow line downwards. Now, as per the question, how much away the person is from the starting point? Means you have to tell me the length of the pink line. This is your question mark. Can anybody answer? Can anybody answer and pick up the option accordingly? If your option is first, raise one figure.
One finger. If your option is 3, raise 3 fingers. Shabash. Look here, bete. From the O point, the person goes 200 meter upward and towards north, and from there 300 meter towards south. How much the person is away from the starting position? Anybody? Bete, what is your choice? Very strange. Question is quite simple. 200 मीटर ऊपर चला गया और वहां से 300 मीटर नीचे आ गया, तो वो अपने घर से कितनी दूर गया? पिंक 100 वाला मीटर सेक्शन कितनी लेंथ का होगा? रेज योर हैंड, व्हाट इज योर ऑप्शन? सभी So every student is saying B. Very nice, because in the B option it is given that this is 100 meter towards south. Now, students who haven't understood it, let me explain. Look here, bete. When it is 300 downwards towards south and upward was the 200, both are in opposite direction. Naturally, this particular gap, if I have got to calculate, I have to subtract to calculate this displacement S. Displacement is represented by S, that is 300 meter minus 200 meter. It becomes 100 meter. Okay. So what was the main learning point here? Remember, the main learning point was here that you should be aware of all the 4 directions. और देखो इन्हीं डायरेक्शन से एक इंग्लिश का वर्ड बनाया है न्यूज, NEWS. East stands for E and W stands for West. So आप कह सकते हो न्यूज का मतलब चारों दिशाओं की जानकारी, चारों दिशाओं के समाचार, यही से बना. Let's move to the second question. Shabash, everybody please go through yourself. You have the assignment. Yes, 9th B के बच्चे पढ़ नहीं रहे बेटे. Are you lazy students? Why don't you read the statement? Second bench. Ninth student, terminated student. Why don't you read the statement? Okay, in this question, Hema is sitting in a car. She is observing beautiful trees outside. Her 2 friends, Lakshmi and Sujata, are also accompanying her in the car. She observed a large banyan tree. Based on this, answer the following questions. क्या कह रहा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, he says there is a car and in the car the person sitting is Hema. Okay. Who are the 2 other friends? The other 2 friends which are accompanying her are Lakshmi and Sujata. Lakshmi and Sujata. Okay. So while moving, they see a big banyan tree outside. Very nice. Let's see. Let's draw. This is the as banyan tree. Okay, tree. Now question. If the banyan tree is taken as reference point, is the Hema is in motion? Yes. बिल्कुल सही. क्या इस banyan tree को अगर reference point ले लें तो क्या उसके हिसाब से इस हेमा को मोशन में बोलेंगे, कार को मोशन में बोलेंगे? आप सभी ने बोला यस, और टीचर भी इसको आंसर को सही कह रहा है. दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस. अब मैं अपने बच्चों को यह भी समझा दूं
कि टेक्निकली हमने मोशन को डिफाइन कैसे करना बच्चे। डिफाइन ऐसे करना होता है कॉन्सेप्ट, whatever is the reference point taken, if somebody is going, moving in such a manner that body's gap from the reference point, this gap is constantly changing by the passage of time, this gap should change. Then only the body is said to be in motion. Let me define it in single sentence. Define motion. A body is said to be in motion if its gap, straight line gap, with respect to reference point is constantly changing. एक बच्चा बोलता है सर ये बॉडी जो आपने रेफरेंस पॉइंट से परे को भगाई है, अगर ये पास को आती तब भी तो गैप चेंज होता रहता बॉडी का। यस, तब भी चेंज होता रहता, तब भी मोशन बोलते हैं हम। लेकिन एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर रेफरेंस पॉइंट ये ले ले और रेफरेंस पॉइंट खुद भी मूव करता रहे और बॉडी भी मूव करती रहे और दोनों पैरेलल मूव करें, उनका बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, स्ट्रेट लाइन गैप ये कांस्टेंट रहे, ये भी उधर को जाए ये भी उधर को जाए और ये गैप कांस्टेंट रहे और दोनों के दोनों रेफरेंस पॉइंट और बॉडी बराबर की वेलोसिटी से चलती रहे, तो क्या हम बॉडी को मोशन में बोलेंगे? नो बेटे, तब हम बॉडी को मोशन में नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके बीच का गैप पासेज ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, आम जिंदगी में अगर कोई बॉडी हमें मोशन में दिख भी रही है तो हमने फिजिक्स के मुताबिक तभी उसको मोशन में बोलना है अगर रेफरेंस पॉइंट से कंसर्न बॉडी का गैप कॉन्स्टेंटली चेंज हो। अगर रेफरेंस पॉइंट खुद ही मूव कर रहा है, बॉडी भी उधर को मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी में, तब इनके बीच का गैप चेंज ही नहीं होगा। उस सिचुएशन में हम इस बॉडी को बॉडी एट रेस्ट बोलेंगे, रेस्ट, मोशन में नहीं बोलेंगे, रेस्ट, फिजिक्स के मुताबिक, साइंस के मुताबिक। हालांकि जो नॉन साइंस पर्सन होएगा बाहर से बंदा कहेगा नहीं नहीं ये दोनों मोशन में, रेफरेंस पॉइंट भी और बॉडी भी। हम इसको क्या बोलेंगे, बॉडी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट। इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं बेटे। मान लो एक साइकिल पे बच्चा जा रहा है, आप लोगों को साइकिलिंग तो जरूर आती होगी इस उम्र तक, आई एक्सपेक्ट सो। तो ये बच्चा साइकिलिंग पे जा रहा है, साइकिल के ऊपर जा रहा है, उसको उसका छोटा ब्रदर बैक साइड पे एज पिलियन राइडर अकंपनी कर रहा है। लेकिन उन दोनों भाइयों को उनकी छोटी सी सिस्टर बाय बाय कर रही है, यहाँ पर खड़े होकर बाय बाय। तो अगर बड़े वाले भैया जो है जो साइकिल चला रहे हैं उनको उनके बारे में पूछा जाए कि क्या वो व्हाइट वाला पर्सन मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द यंगर ब्रदर, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ यंगर ब्रदर, तो अगर व्हाइट वाले ब्रदर का मोशन येलो वाले ब्रदर की के रेफरेंस में पूछा जाए तो हम कहेंगे दे आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन इसी भाई का मोशन अगर विद रिस्पेक्ट टू सिस्टर पूछा जाए तो वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये साइकिल दूर जाएगा व्हाइट वाला ब्रदर और उसकी सिस्टर का ये वाला गैप डी बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। पर दोनों भाई सेम साइकिल पर बैठे होने की वजह से उनके बीच का आपसी गैप चेंज नहीं होएगा विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये येलो वाला ब्रदर बोलेगा मेरा व्हाइट वाला ब्रदर मोशन में नहीं है, जबकि उनकी सिस्टर ये कहेगी मेरे दोनों के दोनों भाई मोशन में हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ओके सर। बच्चों को ये क्लियर हो गया ये वाला? प्लीज वेव योर राइट हैंड टू गिव द इंडिकेशन टू द टीचर दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अगर आगे से हमारा ये रूल रहेगा बेटे डाउन,
अगर आपको नहीं समझ आता तो लेफ्ट हैंड वेव करना है आपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। लेकिन ऐसा ना हो कि दोनों हाथ आपके कोई वेव ही नहीं कर रहा जब भी पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। If our friends are taken as reference point, is the Hema is in motion? क्या No. क्या ये हेमा, लक्ष्मी या सुजाता के रेफरेंस पॉइंट से मोशन में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सुजाता और लक्ष्मी उसी व्हीकल में बैठे हैं जिसमें हेमा बैठी है। तो बाय द पासेज ऑफ टाइम लक्ष्मी और हेमा के बीच का गैप नहीं चेंज कर रहा। जब उनका गैप ही नहीं चेंज कर रहा विद द पासेज ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे बोथ आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन, if the car is taken as reference point, is the hema is in motion? No. No, क्योंकि उसी कार में तो हेमा बैठी है ना। तो कार का और हेमा से कोई भी गैप चेंज नहीं हो रहा। Yes. कार का और हेमा का गैप चेंज ही नहीं हो रहा बाय द पासेज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर भी नो है। पहले का यस आया था, दूसरे का नो, तीसरे का नो, लास्ट पार्ट इसका। Suppose the car in which you are traveling is moving at constant speed along a straight line. Suppose there is no window in the car. Is there any way that you can determine whether the car is moving or stationary? कहता कार के अंदर कोई खिड़की नहीं है, ना ही कार के चलने की आवाज आ रही है, कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बेटे। कहता कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अंदाजा लगा सको कि आपकी कार मोशन में है या नहीं है? बोलो बेटे। And Hema can take her body as a reference point. नहीं बेटे, वो कौन सी बॉडी, जब वो आप बाहर देख ही नहीं सकते, कार के विंडो है ही नहीं, फ्रंट पेन है ही नहीं, आवाज कर नहीं रही कार। Sir, no, her own body. नो बेटे, आप उसमें भी कहोगे सर हम चेक कर सकते हैं। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर स्पीडोमीटर। कार के डैशबोर्ड के ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है कि नहीं होता बेटे? Sir, yes. अगर उस स्पीडोमीटर का पॉइंटर हिल रहा है, रीडिंग शो कर रहा है कुछ ना कुछ नॉन जीरो, इसका मतलब कार चल रही है। Yes. ये ऐसे बताना है। यानी आप बच्चों से वो पूछना चाहता है So, कि no. स्पीडोमीटर की नॉलेज है या नहीं। हाँ, अगर स्पीडोमीटर को भी ढक दें, वो भी नहीं देखना, Odometer. तब हाँ ऑडोमीटर बोल दो चाहे, तब आप कह सकते हो कि तब हम नहीं बता सकते वेदर द कार इज इन मोशन और नॉट, क्योंकि आपको फिर रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ना ही ऑडोमीटर दिखेगा। ठीक है बेटे। Yes. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। शाबाश। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में असर्शन रीजन है। हम देखेंगे वेदर बोथ आर करेक्ट और ओनली वन इज करेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। True. बहुत अच्छे, ट्रू है ये, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बिना हमें पता ही नहीं लगेगा गैप चेंज कर रहा है कि नहीं। रीजन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम कंसर्निंग अ फिक्स्ड पॉइंट। False. True. ट्रू बेटे, अभी तो मैंने मोशन का डेफिनेशन भी यही बोला था। A body is said to be motion if its gap changes constantly with respect to reference point by the passage of time. समय के बीतने के साथ साथ किसी बॉडी का रेफरेंस पॉइंट से जो दूरी है, अगर वो लगातार चेंज हो रही है तो बॉडी को मोशन में माना जाएगा। इसका मतलब इसका रीजन भी ट्रू है। True. शाबाश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज रीड इट। Sir, question third की option A है. एक का क्या मतलब बेटे? उसमें असर्शन और रीजन को हमने बोलना है दोनों सही है कि नहीं। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। Okay. ऐसे ही बताना है बेटे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ बिल्डिंग अपीयर्स स्टेशनरी व्हेन सीन फ्रॉम ए मूविंग कार। एक बिल्डिंग खड़ी हुई दिखती है जब हम मूविंग कार से उसको देखते हैं। बोलो गलत है या सही है? Sir, false. फॉल्स है।
क्योंकि बेटे जब कार चलेगी तो सामने वाली बिल्डिंग से ड्राइवर की दूरी चेंज होती रहेगी। तो ड्राइवर की दूरी जब चेंज होगी तो ड्राइवर कहेगा वो बिल्डिंग मेरी कार से दूर जा रही है या नजदीक आ रही है। दोनों ही केसेस में दूरी तो चेंज हुई ना, रेफरेंस पॉइंट से, कार से, ड्राइवर से। हम कहेंगे कि वो बिल्डिंग रेस्ट पे नहीं दिख सकती, वो जब कार से तो हमेशा मोशन में दिखेगी। तो असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, द बिल्डिंग एंड कार बोथ आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ट्रू। ट्रू, बिल्कुल सही। बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए बंदे को लगेगा कार मोशन में जा रही है क्योंकि कार की गैप चेंज हो रहा है बिल्डिंग से, और कार के ड्राइवर को लगेगा वो सामने वाली बिल्डिंग मोशन में है क्योंकि ड्राइवर के हिसाब से बिल्डिंग का डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा कार से। दोनों ही बोलेंगे कि हाँ जी हम एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट मोशन में हैं। सो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। कितने बच्चों ने ये वाला पॉइंट ऐसे सोचा था? रेज योर हैंड कि सर मैंने भी ऐसे ही सोचा था। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्लास में 3 बच्चे, टेंथ, नाइन्थ ए में है, लेट मी सी, 4 स्टूडेंट्स, और नाइन्थ बी में 5। नाइन्थ बी जीत गई बेटे, नाइन्थ बी जीत गई। देखो नाइन्थ ए में बच्चे भी ज्यादा है लेकिन आप मुकाबला नहीं कर पाए। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कौन जीतता है। क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। Assertion and reason. Displacement can be zero even if the distance traveled is not zero. ट्रू। मैं बताऊंगा इसको, रीजन भी देखते हैं। Displacement is the shortest distance when initial and final position of the object are known. ट्रू। ऑप्शन ओके, आपने बोला रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। देखिए कौन से बच्चे कहते हैं ये दोनों ठीक है। मैंने नहीं बताया अभी तक, ये आपका आंसर है। शाबाश, दोनों क्लासों का कंपटीशन है। लेट मी काउंट द स्टूडेंट्स इन द नाइन्थ बी। 1 2 3 4 स्टूडेंट इन नाइन्थ बी कह रहे हैं ये दोनों से, और नाइन्थ ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शाबाश। और लेट मी टेल यू दिस आंसर इज ट्रू। तो इस बार नाइन्थ ए विनर हुई, मुकाबला ड्रा हो गया। शाबाश, वेरी नाइस। बच्चे आप पहले लैग कर रहे थे, आपने कंपटीशन बराबर करा। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। यहां पर मैं अपने बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस दोनों में क्या फर्क होता है आई विल टेल। मान लो किसी बच्चे का यहाँ पर घर है, स्टार्टिंग पॉइंट, और वो बच्चा इस स्कूल में पहुंच रहा है। यहाँ पर स्कूल फाइनल पॉइंट, और उस बच्चे को आने के लिए घर से, स्कूल से इस रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। इस रास्ते को फॉलो, ये जो पिंक लाइन है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड, इसको बोलते हैं बेटे डिस्टेंस। पर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में ये जो टीचर ने येलो कलर की स्ट्रेट लाइन शो करी है डायरेक्शन के साथ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट गैप, इस येलो वाली लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर कैन आई डिफाइन इट लाइक दिस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉलोड बाय द बॉडी। यस, displacement is the straight line gap between initial and final position, and it is the shortest path, and its direction is always from starting point to final point. Yes, this is the definition of displacement. जबकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती पिंक वाली लाइन की, वो फाइनल से इनिशियल भी ले सकते हो, इनिशियल से फाइनल भी ले सकते हो। इस डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक है। और एक बात, टीचर ने स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी बोला है, याद रखना बच्चे।
अब मान लो गिवन क्वेश्चन के मुताबिक, अब मान लो कोई बॉडी यहां से चली और ऐसे घूम फिर के वहीं पर वापस आ गई, जहां से गई थी वहीं पर वापस आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो गया, फाइनल पॉइंट भी वही हो गया। जब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ड्रॉप हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटे, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी होती है। कैसे स्ट्रेट लाइन करेंगे जब दोनों ही पॉइंट कॉमन है? लेकिन डिस्टेंस फिर भी ये ऐसे पूरा ट्रैक, डिस्टेंस इसमें अभी भी नॉन जीरो है, जीरो से ज्यादा है। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। इसमें नाइन्थ ए क्लास विनर थी। देखते हैं सिक्स्थ क्लास में कौन सी क्लास विनर होती है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज रीड योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, a student walks 100 meter towards east, then 70 meter towards west. What is the distance, what is the displacement? तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं बेटे। डायरेक्शन कैसे सिखाई थी अपने बच्चों को? नॉर्थ साउथ, राइट साइड पर ईस्ट, लेफ्ट साइड पर वेस्ट। और स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन से शुरू कर लेते हैं, ओ पॉइंट। क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है? क्वेश्चन से 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो इसी ओ पॉइंट को टीचर ने यहां दिखाया, तो ये 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे हो गया, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, फिर क्या कह रहा है? 70 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट से 70 मीटर वापस आ गया वेस्ट की तरफ, 70 मीटर इतना। अब वो पूछता है कि आप इसका डिस्टेंस भी बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। Sir, may we tell the answer? कौन सी क्लास कह रही है? 19. ठीक कह रही है, हाँ बोलो बेटे देखें। Sir, option A. वेट, मैं अभी बताऊंगा नहीं, पहले नाइन्थ ए से भी पूछ लेते हैं, देखेंगे कौन सा भी। आपका मैंने नोट कर लिया, ठीक है। नाइन्थ ए में कोई बच्चा है डेयरिंग जो नाइन्थ बी का कंपटीशन कर सके? कम ऑन द माइक बेटे, टेल योर ऑप्शन, लेट मी सी। कोई ऐसा बच्चा जो माइक पे आके बोल सके, कोई भी एक बच्चा नाइन्थ ए का। शाबाश, आ जाओ, आई वांट द डेयरिंग स्टूडेंट। देखते हैं ये बच्चा आया तो है। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, भाई ये तो ड्रा हो गया, बिल्कुल सही दोनों का, दोनों क्लासों ने बिल्कुल सही बताया। नाइन्थ ए ने भी वही बताया, ए ऑप्शन। नाइन्थ बी ने भी वही बताया, और ये सही 9th B ने पहले बताया. पहले कर दिया मैंने, उनको मौका ही पहले कर दिया। ये थोड़ी बात है, यही चीज मैं नाइन्थ ए से पहले पूछ लेते, ऐसे नहीं। सर, 5th क्वेश्चन में भी ड्रॉ हुआ था. मैंने आपसे पहले पूछा था। अब हम देखते हैं, इसको सीख भी लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आए, लेट्स अंडरस्टैंड। शाबाश। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो बेटे, 100 मीटर इधर को गया और फिर 70 इधर को आ गया, और टीचर ने सिखाया था डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉरवर्ड। तो 100 मीटर गया ईस्ट की तरफ, वापिस आया 70 वेस्ट की तरफ, दोनों ऐड करने पड़ेंगे, इट बिकम्स 170 मीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करने के लिए आप देखो, येलो कलर से टीचर ने एक लाइन लगाई। ये येलो कलर क्या बताती है? फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन गैप। तो ये येलो लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 30, 100 माइनस 70 सॉरी, तो इट बिकम्स 30 मीटर। लेकिन बेटे ये 30 मीटर के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है। 30 मीटर तो है तो सही, किधर को? ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? आप बोलोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट से तो ईस्ट की तरफ ही है ना, तो आपको 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट लिखना होता है पेपर में, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो सिक्स क्वेश्चन में ड्रा हो गया भाई, मेरे को मजा नहीं आया। सेवंथ क्वेश्चन को सभी बच्चे रीड करो, फिर से कंपटीशन। सेवंथ क्वेश्चन, देखते हैं कौन विनर होता है। क्वेश्चन 7, अभी तक आपका मैच ड्रा चल रहा है, एक किसने बताया, एक किसने बताया, एक ड्रा हो गया। सेवंथ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, goes to A
60 kilometers, returns to B 25 kilometers, and finally stops at C, which is 10 kilometers further from the B point. What is the total distance and distance? मेरे को फिगर बना के मैं पहले अपने बच्चों को क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। शाबाश, ध्यान से सुनो। हम 3-4 पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। पहला क्या है बेटे? फर्स्ट कह रहा है ओ पॉइंट से उसने अपना मोशन शुरू करा। ओके, हमने वो ड्रा कर दी। इस ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ वो 60 किलोमीटर जाता है। ओके, जाने दो। ए पॉइंट की तरफ 60 किलोमीटर गया, 60। ओके, फिर क्या करा उसने? फिर वहां से वो चला जाता है बी पॉइंट की तरफ, जो कि ओ पॉइंट से 25 किलोमीटर अवे है। 25 किलोमीटर। हम इसको बी की तरफ मूव कर लेते हैं, जो कि 25 किलोमीटर है, ये वाला उसने बताया हमें। ओके, फिर वो क्या करता है? फिर वहां से वो 10 किलोमीटर आगे बढ़ता है सी पॉइंट की तरफ। ओके, फाइनली स्टॉप्स एट सी विच इज 10 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम बी। अच्छा, बी से सी की तरफ जाता है, जो कि 10 किलोमीटर है। अब आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। शाबाश, सी के ऊपर वो रुक जाता है। बता सकते हो बेटे? अपना अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो। ऑप्शन इशारे से बताना है। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ ए क्लास? बेटे फिंगर खड़े करो ना। इफ योर ऑप्शन इज 1, रेज 1 फिंगर। अगर 4 है तो 4 फिंगर। व्हाट इज सभी बच्चे मिलकर खड़े करो ए सेक्शन में। हाँ, दिखी नहीं रहा अच्छे से। ओके ओके, ए का पता लग गया मेरे को। ओके, सी का, सॉरी बी सेक्शन का। बी सेक्शन में कोई बच्चा 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं कौन जीतता है। मैं बता दूं, ए फोर्थ ऑप्शन बताया, और बी सेक्शन में कुछ बच्चों ने फर्स्ट बोला और कुछ बच्चों ने थर्ड बोला। अब देखते हैं टीचर क्या बताता है। शाबाश बेटा। जब डिस्टेंस निकालना है बेटे, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए ऐड करना पड़ता है। 60 प्लस ये वाला बच्चे, ये वाला ऐड करना पड़ेगा, फिर ये वाला। तो बहुत से बच्चों ने 60 के अंदर 25 ऐड दिया होगा, वो गलत हो गया। 25 नहीं ऐड करना, क्योंकि वहां से जब ये वापिस आए यहाँ पर 25 इधर से गैप दे रखा है, तो ये तो 35। हाँ जी, बी ऑप्शन बोलिए। क्या कह रहे हो? सर 9th ए ने बी ऑप्शन बोली है। चलो देखते हैं, मेरे को करने तो दो कौन सा सही है। तो जब ये यहां से 25 बताया, इसका मतलब ए से बी तक रिटर्न करते हुए 35 बना। कैसे बना 35? टोटल कितना था? 60। इधर अभी वापस आना कितना बचा हुआ है? 25। 60 में से 25 माइनस करा, 35 बना। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर और भी ऐड हो गया, तो ऐड कर देते हैं। तो बेटे 101, 105, 105 मीटर तो डिस्टेंस हुआ। 105, इसमें तो ऑप्शन है? ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है ये तो। रिटर्न्स टू बी 20 +10 नहीं होगा? 10 क्यों होएगा? देखो 10 ही तो है, ये तो है 10। देखो बेटे, क्वेश्चन में उसने बोला है ओ से लेकर गया है ए तक 60 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर लिख दो चलो। फिर ए से लेकर वो वापिस बी की तरफ आया, और बी पॉइंट जो है ना वो ओ से 25 किलोमीटर है। ओ से 25, तो इसका मतलब वापिस उसको 35 आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही। फिर बी से लेकर सी तक उसने 10 किलोमीटर कवर करा, विच इज
10 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम बी, ठीक है, 10 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम बी, यहां पर रुक गया, तो 10 किलोमीटर ये हो गया, 35 ये हो गया, और जाते हुए 60 हो गया। तो ये तो ऑप्शन देना भूल गए हैं वो, तो आप इसको सही कर लो। डिस्टेंस तो आएगा 105 मीटर, सभी बच्चे लिख लो। अब रह गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना वो देखते हैं सर बेटा। मीन्स ऑप्शंस गलत हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसको सेट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इतना गैप हो गया, कितना, जिस जिसको टीचर रेड कलर से दिखा रहा है वही डिस्प्लेसमेंट है। अब होगा कितना, आप कहोगे सर 35 ये हो गया, 10 ये, तो 45 तो टोटल वापिस ही आ गया। तो टोटल ओवरऑल कितना था जाते हुए, 60 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर जाते हुए था, 45 वापिस आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली 15 मीटर बच गया। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको 60 में से माइनस करना पड़ेगा कौन सा, 35 प्लस 10, तो ये 15 किलोमीटर आ गया, 15 किलोमीटर। ओके, तो ये दिया दिया है इसने कि नहीं दिया। सर नहीं, नो नहीं गिवन। ऐसे करो फिर इसको, ये देखो इसमें सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में ए ऑप्शन में इसको, सर हाँ सर जहाँ पर आपने 35 लिखा सर वहां पर 25 आना है। बिल्कुल नहीं आना, गलत। भाई टोटल 60 किलोमीटर है, 60, तो इधर से 25 है, तो वापिस तो 35 आया ना। गलत चीज को इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते होते। देखो इधर से 25 बोला है उसने, क्लियर लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओ इज 25 किलोमीटर, ओ से, इसका मतलब ए से कितना है 35। अगर 35 में 25 ऐड करेंगे तभी तो 60 बनेगा, हाँ या ना। रेड वाला दिख नहीं रहा। वाइट कर लिया बच्चों ने। तो ये सही है, आप ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में सही कर लो बेटे। ए ऑप्शन में डिस्टेंस को 95 से हटाकर, ए ऑप्शन में उसको हटाकर 105 कर दो। ए ऑप्शन में 95 को हटाकर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी कंपटीशन चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, a person jogs in the park in a circular path and returns to the same point। ध्यान से सुनो, ऐसे है क्वेश्चन, एक बंदा यहां से भागना शुरू करता है जॉगिंग करता हुआ, सर्कल में पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाता है भाई, सेम पॉइंट पर वापस आ जाता है। ओके, सर अब मे बी टेल। सर ऑप्शन बी। चुप। अब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमसे बात कुछ रखी है। एक्सक्यूज मी सर, मे बी टेल द आंसर। बेटे अब परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं। व्हाट इज योर ऑप्शन, रेज योर फिंगर अकॉर्डिंगली। कैन वी डू? हाँ बेटे, रेज योर फिंगर, व्हाट इज योर ऑप्शन, व्हाट इज योर सिलेक्टेड ऑप्शन। मेरे को बी सेक्शन का पता लग गया, शाबाश, बी का पता लग गया। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ ए। क्वेश्चन समझ लो, ए में जो लड़का यहाँ जॉगिंग कर रहा था सर्कल में, वो घूम के उसी जगह पर आ गया। आपको डिस्टेंस भी बताना है कितना है, और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, और दोनों ऑप्शंस दे रखी हैं पेपर में। देखो कौन सी ऑप्शंस आप पिक करोगे। शाबाश, ए क्लास ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सर बी ऑप्शन। ए क्लास में अब मैं देखता हूँ, हाँ रेज करो, अच्छे से करो, मैं देखना चाहता हूँ, अच्छे से रेज करो बेटे। ए क्लास भी और बी, बी सेक्शन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चे भी बी में ज्यादा है। तो यहाँ पर भी आपका ड्रॉप हो गया। वैसे दोनों क्लासेस सही हैं, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। बेटे इसमें डिस्टेंस क्या होगा, पूरा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। वाई 0, क्योंकि जहां से भागना शुरू करा था उसी पे वापस आ गया, और हमने स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन खींचना होता है, किसको देखने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को।
जब स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रा ही नहीं कर सकते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर और डिस्टेंस हो गया सरकमफ्रेंस। बहुत से बच्चों को सरकमफ्रेंस का मतलब नहीं पता होगा। लेट मी टेल यू, इस सर्कल का पूरा घेरा जो है, इसकी कितनी लंबाई है पूरे घेरे की, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। वैसे मैं उसका फार्मूला भी बता देता हूं। अगर आपको रेडियस पता हो तो आप सरकमफ्रेंस की लंबाई निकाल सकते हो। किसी बच्चे को पता फार्मूला? फार्मूला बेटे, फार्मूला ये होता है। 2 pi r। देख अब देखते हैं कंपटीशन करके, कौन बच्चा मेरे को पाई की 3 वैल्यू बता सकता Sir, 22/7, है? एक कह रहे हो 22/7, 3.14, 3.14। एक मिनट सर, एक मिनट बता। अब जो बच्चा ये बताएगा तीसरी वैल्यू, उस सेक्शन को विनर माना जाएगा। वही लेटेस्ट वैल्यू है। वो तो हमने बता दी, फिर ज्यादा वाली। सर 2 तो हमने बता दिया। उन्होंने भी बता दिया था। थर्ड बताओ। 314/100। ये देखो कितनी स्मार्ट गर्ल है, उसने उसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। वेरी स्मार्ट। ये तो एक ही बात है। हाँ भाई ना, चालाकी नहीं करनी है सर। ओके बेटे, थर्ड जो मोस्ट एक्सेप्टेबल पाई की वैल्यू है लेटेस्ट साइंटिस्टों के द्वारा, वो है 355/113। नोट कर लो, नोट कर लो, ये है लेटेस्ट वैल्यू पाई की। क्वेश्चन नंबर 9। सर फिर इसमें 9th भी जीती। मैम सर 9th भी इज द विनर। क्या हो गया? अगले हेलो। अभी तक ड्राई चल रहा है बेटे, दोनों का सही था। बी ऑप्शन देखो 8। ने तो कुछ बताया। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A farmer moves along the boundary of the square field of side 10 meter in 40 seconds. एक लड़का यहां से भागता हुआ, यहां से भागता हुआ, यहां से भागता हुआ, यहां से वापस आ जाता है और उसको टोटल टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। ओके, और जिस फील्ड के इर्द गिर्द ये जॉगिंग करता है, उस स्क्वायर फील्ड की ईच साइड है 10 मीटर, ईच साइड 10 मीटर। ओके, फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। जब इस लड़के को भागते हुए 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएंगे, तब आप उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। यस, अब है असली कम क्वेश्चन। बताओ बेटे, फिर से देखते हैं। अब असली कंपटीशन है, अपना ऑप्शन चूज करना है आपने। 2 मिनट और 20 सेकेंड, टोटल कितने सेकंड हो गए? लेट मी टेल यू। 1 मिनट में 60 सर सेकंड, पहले डाल दो। सभी बच्चों को पता है। तो 60 प्लस 60, सर सर वी नो द आंसर। 150 सेकंड हो गए। कौन सी ऑप्शन है? बी सेक्शन की पता लग गई मेरे को। ओके, बी सेक्शन की पता लग गई बच्चे। ए सेक्शन की, ए सेक्शन की, ए सेक्शन भी सेम दे रहा है। तो दोनों सेक्शन, लेट मी टच चेक, दोनों सेक्शन 3 ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको चेक करूंगा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो बेटे हम देखते हैं इसको। देखो 40 सेकंड में एक राउंड पूरा हो जाता है। ओके, इसका मतलब है अगर वो भागना शुरू करेगा यहां से यहां तक, देखो येलो लाइन ड्रा कर रहा हूं मैं, तो 40 सेकंड बीत गए। 40 सेकंड के बाद जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिकॉज द पर्सन कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। फिर से एक और राउंड लगाते हैं 40 सेकंड का, और इस बार हम देखो रेड लाइन से ड्रा, पिंक लाइन से ड्रा करते हैं। चलो एक राउंड और लगा, उसके लिए फिर से 40 सेकंड हो गए। 80 सेकंड गुजर चुके हैं। हमने कितने गुजारने हैं बेटे?
140 सेकेंड है टोटल। एक राउंड और लगाते हैं, देखो अब हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। फिर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो फिर से 120 सेकेंड निकल चुके हैं। ओवरऑल सेकेंड कितने हैं? 140। अब हमारे पास 20 सेकेंड बचे ओनली। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे 20 सेकेंड बोले? ये देखो टोटल 140 सेकेंड थे और 120 सेकेंड बीत चुके हैं और हमारे पास बचे कितने बेटे? ओनली 20 सेकेंड। अब इसमें देखते हैं कितना भागेगा। 20 सेकेंड में यहां से यहां तक आधा भाग सकेगा, क्योंकि 40 सेकेंड में वो चारों साइडें कवर करता है, तो लास्ट के 20 सेकेंड में 2 साइड्स कवर कर रहा है, यहां से यहां पहुंच गया। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालते हैं? कोई फार्मूला? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इसको डायगोनल बोल दूं तो व्हाट शुड बी द आंसर? 40 का स्क्वायर, नहीं सॉरी ये 10 है, सॉरी साइड तो 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। तो डी कितना हो गया बेटे? 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट। तो डी कितना हो गया? 2 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट। तो डी कितना हो गया? 2 का अंडर रूट 1.41, 100 का 10 हो गया बच्चे। तो डी कितना हो गया? 14.414 मीटर। या फिर आप इसको डायरेक्ट 10 अंडर रूट 2 कह सकते हो। सर हमारा सही था। सर 90 का सही था। हो गया भाई, ये फिर से ड्रॉ हो गया मैच। तो इसलिए हम बाकी का कंपटीशन कल करेंगे। अभी कोई भी क्लास विनर डिक्लेयर नहीं कर रहे हम, ठीक है? आज का लेक्चर समझ आ गया? प्लीज वेव योर हैंड इफ यस। दोनों हाथ वेव करके दिखाओ अगर समझ आ गया तो। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बेटे आज हम करेंगे पॉलिनोमियल। हाउ आर यू मैम? फाइन बेटे, हाउ आर यू? वी आर आल्सो फाइन मैम। ओके, चलो आज हम ना टॉपिक करेंगे पॉलिनोमियल। ओके बेटे, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल। तो ये स्लाइड है आपके पास, इसमें हम डिस्कस करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एंड विच वन आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आप बताओ। ओके, ये कौन सी नाइन है? Which one? 2a upon y नाइन थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाइन थे अनमोल प्रीत कौर। यस बेटे, इज इट पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बेटे थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा लाउड बोलो बेटे, जोर से बोलो। पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है ये पॉलिनोमियल? इसमें y की पावर है। इसमें जो y की पावर है, स्क्वायर रूट में है वैल्यू, उसको आप बाहर निकाल सकते हो। कहने का मतलब इस टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे
क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, y। ठीक है, तो ये y आ गया। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। यहाँ पे ये आंसर आया y, और ये हमारे पास वाई स्क्वायर है। दोनों वेरिएबल की पावर हमारे पास एक होल नंबर है। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, दैट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? Yes. चलो नेक्स्ट हम पूछते हैं 9th बी, अरुण कुमार। Ma'am, he has gone for March past. 9th बी, अभिजोत Ma'am, there are two Abhijot, which Abhijot? सिंह। First one. First Abhijot. the new one. Yes, is it polynomial or not? Not. You, why? Why it is not a polynomial? बेटे आपका आंसर बिल्कुल सही है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में है। जो x वेरिएबल है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3a, और x की पावर ऊपर लेके जाओगे तो -1। अगर वेरिएबल को ऊपर लेके जाओगे तो हम उसका जो पावर होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। वो क्या आ गया, -1 और +1। यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है। वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल की कंडीशन है वेरिएबल की पावर होल नंबर ही चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, -1। -1 is not a whole number. That's why it is not a polynomial. Not polynomial. अगर पॉलिनोमियल ना हो तो क्या है फिर ये, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बेटे? दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है एवरीवन? Yes. ओके, गो टू योर सीट बेटा। यस, 9th बी, रोल नंबर 13। रोल नंबर 13। Next B. She is absent. रोल नंबर 12। 9th बी, रोल नंबर 12। She is also absent. Is it polynomial or algebraic expression? Yes, बताओ जल्दी से, पॉलिनोमियल और algebraic expression क्या है ये? I think it is algebraic expression. Polynomial. Because This is both. Every expression is a polynomial. ठीक है? all polynomial, देखो क्या होता है, all polynomial is algebraic expression. so it means it is a polynomial. It is a polynomial and algebraic expression both. मैम फिर तो सारे algebraic expression हैं। algebraic expression तो बेटे सारे होते हैं जो फिर हम में यही लिख दे, यस बेटा फिर हम सभी में algebraic expression लिख दें। आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि स्लाइड में हमने सिर्फ पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मेन फोकस पॉलिनोमियल पे ही गया है हमारा। और मैंने ये चीज आपको एक्स्ट्रा बता दी है कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन
ऑल algebraic एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है कि उनकी पावर जो है वो होल नंबर चाहिए हमें। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर चाहिए, जैसे यहाँ पे है 1। पॉलिनोमियल की पावर अगर होल नंबर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर है बेटे, तो ये पॉलिनोमियल है। अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है एंड पॉलिनोमियल भी है। क्लियर है? तो बोथ है पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? Yes. ठीक है। नेक्स्ट 9th है, रोल नंबर 14। 9th है, रोल नंबर 14। नाइन, हाँ जी बेटे। इट इज अ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। चलो, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। पॉलिनोमियल। दिस इज अ वेरिएबल और इसकी पावर क्या है? देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2 मैम बाय, 4 के बाद क्या है, अंडर रूट है? नहीं बेटे ये लिखा हुआ है म्यू। अच्छा यू, दिस इज अ यू रेज टू पावर 2/3 -7। ओके मैम। ठीक है, तो u की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? 2/3। इज इट होल नंबर? आंसर करो बेटे आप। इज इट होल नंबर? No, it is not a whole number. तो ये पॉलिनोमियल होगी। अगर ये होल नंबर नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? It is not a polynomial. इट It इज is a नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है बात? अगर पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। क्लियर है? yes, ma'am. Sit down. नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9th है, रोल नंबर 9। Ma'am, yes. यस बेटे, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। 9th बी, रोल नंबर 17। 9th बी, रोल नंबर 17। बताओ बेटे, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? मैम यस। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5y। जो y है वो भी रूट के अंदर है, यस। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो y है उसकी पावर हमारे पास हाफ है। वेरिएबल की पावर होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गो टू योर सीट। 9th बी, रोल नंबर 7। 9th बी, रोल नंबर 7। पॉलिनोमियल और नॉट? Yes. यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैम एक में डाउट है। यस बेटे बोलो। मैम वो वाला जो जिसमें 1 अपॉन अंडर रूट, नहीं, क्यूब रूट टी प्लस टी का क्यूब प्लस 5। दिस वन। यस। Excuse me, ma'am.
Ma'am, one more doubt in that side. The first and last is the same, but answers are different. नहीं उधर फाइव उधर पर वाई दे ऊपर वो अंडरवुड है नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस यस अब इसको देखो, ये वाली जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास टी क्या डिनोमिनेटर में है, क्यूब रूट मीन्स टी की पावर क्या आ गया 1/3, डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाओगे तो साइन पावर का चेंज होता है, दिस इज इक्वल टू टी रेज टू पावर -1/3, तो क्या -1/3 होल नंबर है? नो अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज? Yes, ma'am. और कौन सा डाउट है बेटे बताओ? मैम और नहीं है बस एक ही था क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है बेटे आपको? यस ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें पावर क्या है 1/3 विच इज नॉट अ होल नंबर, एंड दिस इज हमारे पास, हाँ दिस वन इज अ पॉलिनोमियल, यस, क्योंकि जो पावर है ना, जो होल नंबर नहीं है, वो एक डिजिट पे है, वेरिएबल पे नहीं है, 7 इज अ डिजिट नॉट अ वेरिएबल। मैम ये दोनों नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता ही होता है, Okay, ma'am. जो पॉलिनोमियल है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पक्का ये होगा ही होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है चीज? हमने पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ वेरिएबल को चेक करना होता है, वेरिएबल की पावर, डिजिट की पावर चेक नहीं करनी है आपने, सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। जैसे इसमें है, यहाँ पे 7 जो है एक डिजिट है, उसकी पावर रूट आ जाए, नेगेटिव आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल क्या है y है, वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है एंड 1 है which is a whole number, therefore it is a polynomial। clear है? this is also a polynomial, वेरिएबल x है, x की पावर 1 है, तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर मिल गया हमें तो वो क्या है पॉलिनोमियल है। क्लियर है चीज? क्लियर है पॉलिनोमियल? Yes. गुड। आपको असाइनमेंट्स मिल गई हैं बेटे? Yes. निकालो एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा बेटे, यहाँ पे एमसीक्यूज के आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये नहीं है कि कहो कि मैम आंसर तो ज्यादा है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एमसीक्यू में जो ऑप्शंस दिए हैं एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें बताना है जो करेक्ट है। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर लीनियर पॉलिनोमियल? Ma'am, option A and एक मिनट, 9th बी रोल नंबर 1, 9 यस नहीं है? यस हाँ जी बेटे, तो इसमें आप बताओ आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑप्शन बी, नहीं बी हाँ जी बी, बी ए बी ऑप्शन सी √2 प्लस a² x, ऑप्शन डी -3x², ऑप्शन ई x+1² -x²। ये है आपके पास क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं ये। अब मुझे आंसर दो आप, रोल नंबर 1। यस बेटे, आपने कहा ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट, एंड बी आल्सो बी ऑल्सो करेक्ट, और बस इतना ही है इसमें वेरिएबल कौन सा है x, इसकी पावर कितनी है 1 मैम फिर A की पावर तो 2 है। बेटे? a इज नॉट अ वेरिएबल,
a इज नॉट अ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है। मैम पर उसमें गिवन तो है नहीं कि बेटे जब हमारे पास x एंड y इक्वेशंस में मिलते हैं ना, तो ये अंडरस्टूड होता है कि हमारे पास वेरिएबल x एंड y होंगे। जो a t d बाकी के हमारे पास अल्फाबेट से रह जाते हैं, वो हम एज अ कांस्टेंट उनको लेते हैं। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर है दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x नहीं होता तब आप कहते हैं कि लेट a बी अ वेरिएबल। अगर x है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास x इज अ वेरिएबल। ओके मैम। तो दिस इज ऑल्सो अ लीव। अब इसको देखो, ऑप्शन ई को। क्या? तो क्योंकि उसकी पावर स्क्वायर में है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस। करो सॉल्व। क्या आ गया? एक्स x स्क्वायर प्लस x square plus 2x वन plus 1 plus 2x माइनस x स्क्वायर। x square. नहीं आप बताओ। Ma'am, it is है linear. है कि यार 2x एक्स की पावर 1 है Ma'am, linear. लीनियर, क्योंकि ये कैंसल आउट हो गया। x स्क्वायर तो कैंसल आउट हो गया, ऑपोजिट साइन में पड़ा है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? दिस वन, 1 प्लस 2x। अब बताओ ये लीनियर है? यस Yes. तो ऑप्शन ई इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब सारे लीनियर थे, बस एक ही सिर्फ एक जो ऑप्शन डी है दैट इज नॉट अ लीनियर। लीनियर। हमारे पास लीनियर नहीं है तो यस Quadratic. quadratic equation, quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial. क्लियर है बेटे? चलो नेक्स्ट। MCQ 2, रोल नंबर 9, सॉरी क्लास 9 थे, रोल नंबर 29। MCQ 2, सेकेंड MCQ, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिख देती हूँ मैं, 5x स्क्वायर माइनस 6x³ y प्लस 4। सर यस, बताओ आंसर बताओ, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। Ma'am, 9 थे, रोल नंबर क्या बोला था मैंने? 9 70 नहीं, 17 रोल नंबर तो नहीं बोला था मैंने, 9 29 बोला था। 9A29 रोल नंबर 9 थे। डिग्री बताओ बेटे इसकी। ओके, 9th बी। मैम क्लास में जो लड़का बैठा है जिसने हैंड रेज किया, बेटे आप बताओ डिग्री क्या है इसकी? Ma'am, 3. ऑप्शन बताओ A B C में से। Option A. गो टू योर सीट बेटे। यस, फर्स्ट रो गर्ल्स, 9th बी। बताओ ऑप्शन। यस बेटे आप बताओ, 9th बी, जिसके हैंड रेज है बेटे, जिसने किया हुआ है। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो नहीं, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज ऑप्शन सी। नो, ऑप्शन सी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन बी। चालू हो गए बेटे। देखो डिग्री देखो क्या है, यहाँ हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? 2 इसकी पावर हमारे पास 2 है।
ठीक है, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 4। मैम 5 3 + 2 ये बेटा ये 3 है, ये 1 है, 5 कैसे आया, 3 + 1 = 4। मैम फिर 2 भी तो आंसर आ ही सकता था 5x। नहीं, 1 मिनट करने तो दो सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे y है, y की पावर कितनी है, 2 है। स्क्वायर। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें 2 4 2 में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल प्रोडक्ट में आते हैं, तो उस टर्म के जो वेरिएबल की पावर है उसको आप ऐड करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 3 + 1 किया, तो जब पावर को ऐड करेंगे उसके बाद चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी आपके। क्लियर है, चीज क्लियर है। यस मैम। यहाँ पे डिग्री क्या है, 4। बेटे इसमें कुछ पूछना है आपने, नेक्स्ट MCQ 3। 9th है, रोल नंबर 16। MCQ 3 है आपके पास, उसका आंसर बताओ। वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -√2। सी किया ऑप्शन आपने सॉल्व इसको, सी Ma'am, in third question, we have to put the value of x as -√2. यस बेटे। Okay, ma'am. यस 9th है, आपने किया बेटे सॉल्व ये क्वेश्चन, सी ऑप्शन ऑप्शन सी। गो टू योर सीट, दोबारा से सॉल्व करो बेटे इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी करो। Ma'am, it is not visible. ओके, ऑप्शन ए -1 -12√2, ऑप्शन बी 3 + 12√2, ऑप्शन सी -1 -20√2, ऑप्शन डी 3 + 20√2। किस किस ने सॉल्व कर लिया बेटा ये, p ऑफ -√2 फिल करना है, किसमें, एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, px क्या गिवन है, 1 - 2x + 2√2 x² -8x³। x की जगह पे वैल्यू फिल करो -√2 और उसको सॉल्व करो। मैम इसमें डाउट है, समझ नहीं आया। सॉल्व करते हैं बेटे इसको, वन एज इट माइनस, विजिबल है रेड, नो। चेंज कर दे, बी अब विजिबल है बेटे, मैम यस। 1 - 2 कोफिशिएंट एज इट, एक्स की जगह क्या आ गया, -√2। क्लियर है, +2√2 और x की जगह -√2, हमने क्या करना है इसका स्क्वायर करना।
-8 minus √2 raised to power 3. फर्स्ट वन तो एज इट ही आ गया हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इसको लिखोगे 2√2 प्लस 2√2 एज इट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और स्क्वायर 2. 2. यहाँ पे क्या आ गया आपके पास ओनली, ठीक है, -8, इसको सॉल्व करते हैं, √2 को 3 टाइम -√2 Minus इंटू -√2 इंटू -√2 क्या आया हमारे पास 2 minus 2 under root 2. -8 इंटू -2√2। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको, Minus 2 under root 2. यस बेटे 1 प्लस 2√2 टू द 4√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को, देखो Yes, yes. ये वाली टर्म 2 टू द 4 Yes. 4. माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16. 16√2, सही कितना सी यही किया था। चलिए मैं बैक पे देखें क्या गलती हुई है, √2 2√2 का √4, यहाँ पे √2 है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ √2 है एक्चुअली, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास तो सही होगी, मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे √2x था ये वाला, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ जो टर्म है ये चेंज हो गया, ये आ गया 2। ये चीज क्लियर है बेटे, यहाँ मिस्टेक क्या हुई थी, क्योंकि स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट 1 माइनस √2x है, मैंने यहाँ 2x लिख दिया था, तो जब हमने इसको करेक्ट किया √2 इंटू √2, ये हमारे पास क्या आ गया 2, ओनली 2, 1 प्लस 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 2 इज 3, 3. 4 प्लस 16 ऐड करोगे कितना आ गया, 20 under root 2. so this is the answer, option is D. D। Ma'am, please show previous slide. Page. Slide. डन बेटे, Yes. Yes. MCQ 4,
एमसीक्यू पी एक्स गिवन है आपको, x प्लस 3, फाइंड क्या करना है, पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस 2x। And here we have to put x plus 3 equals to 0. नो नीड बेटे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इन दोनों को यहाँ पे पी ऑफ माइनस 2x फाइंड करो। x की जगह क्या चेंज करना है, माइनस ऑफ 2x। सिर्फ x को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, माइनस 2x। यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ x की वेरिएबल चेंज हुआ है। वो हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे आ गया माइनस ऑफ 2x प्लस 3। पी एक्स तो ऑलरेडी गिवन था, पी ऑफ 2x हमने निकाल लिया। करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, कर दो ऐड। मैम समझ नहीं आया। देखो पी एक्स बेटे गिवन है आपको, Yes. Yes. हमें क्या चाहिए ऐड करने के लिए, हमें पी ऑफ 2x चाहिए, पी ऑफ माइनस 2x। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या चेंज हुआ है, x की जगह पे माइनस ऑफ 2x लिखा है मैंने, इतना ही चेंज किया। Yes. तो यहाँ फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, Minus 2x. माइनस। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस 2x और प्लस 3 तो वेरिएबल ही है नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, प्लस 3 एज इट। ठीक है, अब Yeah. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस 2x ऐड कर देना है। ऐड करो, क्या करना है, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस 2x। पी एक्स की वैल्यू उठा के लिख दो, x प्लस 3। पी ऑफ माइनस 2x की वैल्यू लिख दो, प्लस माइनस 2x प्लस 3। जब दो साइन इकट्ठे आते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगता है, बिना ब्रैकेट अभी p into x कैसे कहाँ से आया? तो एक्स बेटे गिवन है आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एमसीक्यू x की p into x की वैल्यू p into minus 2x कर दी थी। हाँ जी बेटे, पी ऑफ एक्स गिवन था आपको, पी ऑफ एक्स गिवन है, Yes. पी ऑफ 2x हमने इसी से निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, हमें क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन, एक्स प्लस ये गिवन है। Yes. हमें क्या चाहिए, पी ऑफ माइनस 2x। ठीक है, हमने क्या किया है, x की जगह क्या लिखा है, माइनस ऑफ 2x। तो जो हमारे पास px के इक्वल में x पड़ा था, उसकी जगह आप क्या लिखोगे अब, Minus 2x. ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2x। और प्लस 3 में कोई चेंज नहीं बेटे, वो एज इट, क्योंकि इसमें वेरिएबल है नहीं, यहाँ x नहीं है ना, तो इसमें चेंज नहीं होता। चेंज वहां होता है जहां पे फंक्शन होता है, x होता है, वेरिएबल्स। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। Yes. गिवन था, सिर्फ चेंज क्या किया, x की जगह माइनस ऑफ 2x किया है और कुछ नहीं चेंज किया, x की जगह माइनस ऑफ 2x। क्लियर है। Yes. फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस 2x, इसकी वैल्यू निकालनी है। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, p into 2 x plus 3. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 प्लस एज इट, पी ऑफ माइनस 2x की वैल्यू कितनी है, Minus 2x Minus plus 2x plus 3. 3. तो यहाँ क्या आ गया, माइनस ऑफ 2x प्लस 3। क्लियर है, Yes. x प्लस और माइनस 2x, इसको आप ऐड कर दोगे, क्या आएगा, ये किसके इक्वल हो गया, ये आ गया x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। वेरिएबल में वेरिएबल ऐड होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होता है। Minus x plus 6. माइनस x प्लस, ये माइनस 2x इस x के साथ ऐड हो गया, x
माइनस 2x क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ x, ठीक है। और 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो ऑप्शन इज, D. ऑप्शन इज डन बेटा। Yes. जो ऑप्शन एमसीक्यू 5 है बाइनोमियल, इसके सारे ऑप्शन ठीक है, A B C D सारे बाइनोमियल्स हैं, ऑल आर बाइनोमियल्स। जशन रीजनिंग डिस्कस कर लें थोड़ा सा। जशन रीजनिंग का फर्स्ट देखो बेटे, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर मैं कहूं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, Please repeat again. बेटे असर्शन है, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर px इज इक्वल टू 0 बोल दिया उन्होंने और मेंशन कर दिया दिस इज अ कांस्टेंट, क्या मेंशन कर दिया, कांस्टेंट, Judge. तो केस में जो px हमारे पास वैल्यू होगी वो एक जीरो होगी, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो है ही नहीं, ओनली कांस्टेंट टर्म है, Yes. ठीक है। कांस्टेंट टर्म, जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट टर्म, Yes. जीरो इज आल्सो कांस्टेंट टर्म। अगर px इज इक्वल टू 0 है जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0. तो वो क्या होगी, एक जीरो पॉलिनोमियल होगी। तो इट मीन्स हमारा जो अजर्शन है वो ट्रू है, अजर्शन इज ट्रू। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, time is over. टाइम इज ओवर। अच्छा आंसर लिख लो अजर्शन रीजनिंग के। Ma'am, reason is false. Reason is false. √3 plus √x plus 1 is not a polynomial. Option C. ऑप्शन सी। सेकंड का ऑप्शन है आपके पास बी, थर्ड ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज डी, फोर्थ ऑप्शन इज डी। मैम जो फोर्थ क्वेश्चन की assertion है एक बार वो एक्सप्लेन कर दो. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2 है पहले, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज 4। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम डिग्री कैसे निकालते हैं, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, क्लियर है। अगर आप तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, पहले सपोज मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्होंने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ आपको डिग्री बतानी है। Yes. आपको हाईएस्ट पावर मिल गई है कि इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 आएगी। अगर इसको मैं अब इससे मल्टीप्लाई करूं, तब हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 3. दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पावर x की 3 आई, तो डिग्री कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए पर 3 आ रही है. बेटा डिग्री 4 कैसे आएगी, नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि 4 है पर 3 आ रही है. 3 आ रही है, तो ये फॉल्स हो गया ना, यस. ये फॉल्स हो गया। जितने वेरिएबल हमारे पास फैक्टर्स, कहने का मतलब जितने फैक्टर्स पड़े होते हैं लीनियर में, उन फैक्टर्स को आप जितने बार मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास डिग्री आएगी। ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशंस है, फैक्टर फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है। जब आप लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो तो एक एक पावर ऐड होती है, उसे नहीं होती। कितने हमारे पास है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा।
ठीक है, तो ये फॉल्स है। रीजन भी समझा दो। हाँ जी, रीजन भी समझा दूं। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ, बेटा रीजन आपके पास ट्रू है, रीजन गलत नहीं है, रीजन ट्रू है। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? रीजन में बोला है नंबर ऑफ अ जीरोस। देखो इसी से समझते हैं। मेरे पास फैक्टर क्या है? x-2, x-3, x-2। ठीक है, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? Equals to 0. इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो करके क्या करते हैं? एवरी फैक्टर को अलग अलग इक्वल टू जीरो करते हैं ना। मीन्स क्या है? x-2 इज इक्वल टू जीरो। और X minus 3 equal to 0. और X minus 4 equal to 0. की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2, 3, 4. ये क्या है? जीरोस हैं। तो हमने इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चंस में? द नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जितनी जीरोस होंगी उतनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन में रीजन में ये बोला है द नंबर ऑफ अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जितने जीरोस हैं उतनी ही डिग्री होगी। अभी निकाला हमने डिग्री कितनी है। मैम पर जहाँ पे x minus 2 equal to 0 है वहाँ पे x की डिग्री तो 1 है तो फिर वो 2 कैसे हुई? पूरा एक पॉलिनोमियल, ये पूरा एक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी आएंगी? 1, 2, 3। 3 जीरोस आएंगी। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है कि जितने हमारे पास पॉसिबल जीरोस आ सकते हैं उतनी उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे कितने जीरोस आए हैं? 3, डिग्री कितनी होगी? 3. अगर एक जीरो आता, अगर मेरे पास क्वेश्चन होता x-2, x-3, ये पॉलिनोमियल होती, इसकी जीरोस मुझे निकालनी है। इक्वल टू जीरो किया तो यहाँ पे 2 आया और x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। जीरोस आई, 2 जीरोस आई। इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 2। डिग्री भी 2 होगी। 2 जीरोस आई हैं तो डिग्री होगी। इसको सॉल्व कर दो। मैम आ गया समझ. ठीक है बेटे, क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। जहां हम कहें जितनी जीरोस होती है उतनी ही डिग्री होती है। Yes. यहाँ पे रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। Yes. तो ऑप्शन इज डी। Option is D. हाँ जी, नेक्स्ट के आंसर बोल दूं? केस स्टडी के आंसर आंसर लिख लो बस। मैम मैम रहने yes. दो, मैम बाद में करा देना। बेटे आंसर, सिर्फ आंसर लिखो। केस स्टडी, ये जो फर्स्ट केस स्टडी है उसके आंसर लिखो। पहले का आंसर है 4। 4। सेकंड 1। सेकंड का आंसर 1। Yes. थर्ड का आंसर एच ऑफ एक्स। यस। एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये थर्ड का आंसर है। Yes. फोर्थ का आंसर पी ऑफ एक्स। Yes. फिफ्थ का आंसर 3। Fifth है फिफ्थ नहीं. है ही नहीं। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर देयर? सेकंड केस स्टडी का आंसर लिख लो। फर्स्ट का आंसर रिया। अच्छे लग मैम फर्स्ट केस स्टडी की फिफ्थ का आंसर क्या था? किसका बेटे? फर्स्ट केस स्टडी की फिफ्थ क्वेश्चन का. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इज 3। ओके मैम. तो क्या करेंगे? फर्स्ट का आंसर रिया। फैक्टराइज आई थिंक आपको आता है, फैक्टराइज आप कर लेना। Yes. सेकंड का आंसर है आपके पास 12। थर्ड का आंसर आएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी।
मैम Yes. फर्स्ट केस स्टडी की तो फिफ्थ पार्ट है ही नहीं। अच्छा फिर रहने दो बेटे, अगर आपके पास नहीं है, मेरे वाली असाइनमेंट में है। नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन ही लिखवा दूंगी। अभी ओके मैम। फैक्टर बाय द completing the middle term. Middle term. मैम जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला है इसमें क्वाड्रेटिक वाला भी लिख सकता है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला है। तुम बताओ, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हाँ जी। तो इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला भी लिख सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। हाँ, वो भी लगा सकते हैं। ओके मैम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस ठीक है। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, I have doubt in fifth question in MCQ. यस बेटे, क्या डाउट है आपको, बताओ। चलो एमसीक्यू, फिर एमसीक्यू है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर बायनॉमियल। पहला एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट एक्स रेज़ टू पावर 10 प्लस 5, टू टर्म्स हैं तो दैट इज अ बायनॉमियल। क्लियर है, ये तो क्लियर है कि टू टर्म्स हो तो बायनॉमियल होता है। ठीक है। मैम यस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बी भी है, एक्स रेज़ टू पावर 100 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। हम ये भी टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास, टू टर्म्स हैं बेटे, ये हमारे पास सिंगल टर्म, दोनों कांस्टेंट हैं। अगर आप √2 और √3 की वैल्यू फिल करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। √2 की वैल्यू क्या होती है 1414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं ना। मैम ये फिक्स्ड होती है ऐसे सभी रूट्स की वैल्यू? जी बेटे, ये फिक्स होती है वैल्यूज। ठीक है, तो इनको ऐड करके ये सिंगल टर्म बन जाएगी। मैम यस एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई। ये बायनॉमियल हो गया। थर्ड पार्ट, सी पार्ट भी देख लो। वाई स्क्वायर बायनॉमियल है। माइनस। मैम टाइम इज ओवर। बेटे आपने डाउट पूछा था, बस ये लास्ट में मैं जा रही हूँ। मैम हो गया डाउट ये। वाई कॉमन ले लो तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस √2। इसको भी सॉल्व कर सकते हो बेटे आप। मैम यस और एक टर्म आपके पास वाई स्क्वायर है, दो टर्म्स यहाँ पे बनी। मैम सारी बायनॉमियल्स है मींस। सारे बायनॉमियल है बेटे, सारे ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पे। Thank you. ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, सी यू मैम। Yeah, you can do it.